नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना है and I have created this YouTube channel which would be speaking about important diseases for medical students and up to some extent nursing students also or nurses also. Now, I would be discussing only those topics which hold significance on either of the three criteria. Either the topic is very common, either the disease is very common. So if it is very common, you would be getting patients every day. And if you are not understanding the basic etiology, pathogenesis, treatment, investigation used in the disease, it would be all in vain. Your medical education would be all in vain. The second criteria, the topic may be of use in examination. There are certain topics which are not so important practically, but those are, say, cup of tea of the examiners. They usually ask in terminal exams and the professional exams. The third criteria which I have chosen, there are certain diseases which are uncommon, not rare, uncommon and lethal also. So we may get patients of these diseases say once a month or once a year. But since these are lethal, and if we are not knowing the exact treatment of these diseases, our say unknowingness may cost a life. So these are the three important criteria how we are going to select topics for this YouTube channel. And the first topic which I have chosen is part 1 of rationale and pharmacology of drugs used in bronchial asthma and COPD. Why part 1? Because in this part I would only be speaking about the basic practical pathogenesis of bronchial asthma and COPD. Why pathogenesis? Pathogenesis means step by step development of disease. Disease manifestation is other thing. A patient may come in OPD with severe bouts of cough, severe breathlessness, and once you examine, once you investigate, you find a person a case of bronchial asthma. But this bronchial asthma hasn't developed in a day. Basically, there are so many steps which are involved before the patient clinically manifests. So we have to learn the pathogenesis of bronchial asthma and COPD both. And I would be explaining it in a very simple manner. Simultaneously, I will also be telling on the various steps of pathogenesis where we can intervene through pharmacology, through drugs or through other things which can help either in the prevention of the disease or control of the disease or cure of the disease. So let's begin with the part 1 of rationale and pharmacology of drugs used in bronchial asthma and COPD. And COPD, as all of you know, is basically name given to two diseases. The two diseases are, one is chronic bronchitis and other one is that is known as emphysema. Now, this is the basic pathogenesis of bronchial asthma. If we talk about the pathogenesis, as all of you can see, I have written asthma pathogenesis. Two factors are there, genetic factors and environmental factors. Genetic factors, we can't help much. The child is born with these. One is HLA mutation, other is defect in bronchial epithelium because of this HLA mutation or gene defect. Now, you must be observing this point 1 encircled and written in the green and arrow going here. The reason behind, as I just talked 2 minutes back, कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैथोजेनेसिस के किस स्टेप पर हम इंटरवीन करें तो डिजीज को या तो हम होने से रोक सकते हैं प्रिवेंशन, या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको क्योर कर सकते हैं. तो डियर friends, take my words, this step 1 is revolutionary step. After 25, 30 or maybe 50 years, most of the disease would be treated at the gene modification level only. So the child will born with the genes which are not making him predisposed to
diseases, not all the diseases, but most of the diseases. So if we can make the gene therapy, not now, after 20 years, 25 years, maybe 10 years, maybe 50 years, but this is treatment of the future, we would certainly be getting a child who will never develop bronchial asthma. The other factor which is important to understand is environmental factor. Environmental factor, one is excess hygiene and antibiotics use within first 2 years of the life of a child. These two environmental factors I have taken from a very reputed journal. Excess hygiene is a paradox. Nowadays, you must be getting patients when you would be going for your ward duties, you would be sitting with your pediatrician or you would be sitting with your physician or nurses would be seeing in the ward. Parents claiming कि सी डॉक्टर मैं अपने बच्चे को बहुत ही हाइजीन से रखता हूँ या रखती हूँ, उसको मिट्टी में नहीं जाने देती, धूल में नहीं जाने देती, कीचड़ में नहीं खेलने देती, गंदे पानी से दूर रखती हूँ. तो ये एक पैराडॉक्स जैसा है एक्सेस हाइजीन. होता क्या है, ऐसे बच्चे बहुत सारे एंटीजन से एक्सपोज नहीं होते, बट a stage of life comes when this excess hygiene is practically impossible absolutely. तो जब पहले दफ़े वो इसके लिए एक्सपोज होते हैं तो उनको बहुत सारा रिएक्शन का सामना करना पड़ता है. तो हमको ये बताना है, प्लीज़ बी नेचुरल, लेट द चाइल्ड इंजॉय ईच एंड एवरीथिंग. Of course, not say walking on a wall and getting head injury. जैसा हम लोग बचपन में खेलते थे वैसा ही एक्सेस हाइजीन को अवॉइड करना है. और ये हम डॉक्टर्स के लिए है कि पहले 2 साल जहाँ तक हो सके बच्चे में हम एंटीबायोटिक यूज़ ना करें. और आप देख सकते हैं ये पॉइंट 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि हम पेरेंट्स को एडुकेट करें इस बारे में और ये हमारे लिए है कि हम एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करें. तो ये 2 इंटरवेंशन साथियों हो गए जो ब्रोंकियल एस्थमा को होने से रोक सकते हैं. अब हम आगे बात करते हैं. आगे हमारी बात आएगी, चाहे हम लोग बात करें जेनेटिक फैक्टर्स की, चाहे हम लोग बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, ये दोनों एक चीज़ को लीड करते हैं जिसको साथियों हम लोग एटोपी कहते हैं. ये एटोपी क्या होती है? ये एटोपी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है. आप सभी को पता है हम सभी के शरीर में टी सेल्स और बी सेल्स 2 होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं. आपको मालूम होगा कि जो बी सेल्स हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं जिनको हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, IgA, IgG, IgM, IgE. तो जो एटोपिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें एटोपी डिसऑर्डर होता है, इनमें IgE एक्सेसिवली बनता है किसी पर्टिकुलर एलर्जेन के अगेंस्ट. अब देखिए कैसे इसको ब्रोंकियल एस्थमा में हम लोग यूज़ करते हैं. पहले तो ये समझते हैं कि एटोपी डिसऑर्डर सिर्फ ब्रोंकियल एस्थमा नहीं करती. अगर किसी पर्सन को एटोपी डिसऑर्डर है आइदर बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर और बोथ, अगर वो व्यक्ति पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है एटोपी के साथ, आप देखते होंगे ना वो अपने पड़ोस में 100 बच्चे रह रहे हैं, 3 को ब्रोंकियल एस्थमा है, तो इन 3 को ब्रोंकियल एस्थमा इन फैक्टर्स की वजह से और वो पर्सन एटोपी का पेशेंट है. तो एटोपी 3-4 ऑर्गेन्स को अफेक्ट करती है. इफ इट अफेक्ट्स द ब्रोंकियल tree, then the child would be having or the adult would be having bronchial asthma. If it affects skin, then the child would be having atopic dermatitis, lot of itching and rashes. If it affects conjunctiva, the person would be having allergic conjunctivitis, sticky discharge from the eye and the itching and when the change of season is there. And number 4, if it is affecting the nose, it would be allergic rhinitis, resulting into sneezing, lot of sneezing, and of course it's also known as hay fever. So suppose a child is born with atopy tendency and this child comes into contact with the allergen, the first response is T cells are activated. So first is exposure to trigger which sensitizes T cells, and here I have written point 3. So if we can prevent this exposure to the allergen, we might prevent the attack of asthma. Now, there is difference between this excess hygiene and this exposure to the trigger. Excess hygiene means we have made a person such कि वो पर्सन कभी किसी एंटीजन के टच में आया ही नहीं. यहाँ पर क्या है, हमको पता है कि इस पर्सन को इस पर्टिकुलर एलर्जेन से एस्थमा होता है.
जैसे किसी को सिगरेट के धुएं से होता है, किसी को दरी की धूल से होता है, किसी को पेट्स में होने वाले माइट से होता है। सो अगर हमको आइडेंटिफाइड है तो हम उनसे कहेंगे कि प्लीज़ आप एक्सपोजर मत करिए। तो ये तीसरा इंटरवेंशन है साथियों, जहां पर हम ब्रोंकियल एस्थमा के अटैक को होने से रोक सकते हैं। जब टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं वो बी सेल को एक्टिवेट करती हैं। बी सेल क्या करती हैं, बहुत सारी मैस्ट सेल्स को ब्रोंकियल एपिथेलियम में भेज देती हैं और साथ में आईजीई बनाती हैं, आप देख सकते हैं। और ये आईजीई क्या करती हैं, मैस्ट सेल को अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। तो ये मैस्ट सेल्स जो हैं हमारी, ये अब ओवर जिसको कहना चाहिए सेंसिटाइज हो जाती हैं अगर वो आईजीई के द्वारा उनको अच्छे से ट्रैप कर लिया गया है। तो ये तो पहले एक्सपोजर के बाद इतना बॉडी में होमवर्क होके रखा है। मैस्ट सेल्स हैं जो एयरवे में हैं और जो आईजीई से सेंसिटाइज्ड हैं। अब दोबारा उसी एलर्जेन का जैसे ही एक्सपोजर होता है 0.3 फिर से आता है, हम उसको रोक सकते हैं। तो ये मैस्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेट होकर ये फट जाती हैं। अब यहां पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है। सो देयर आर ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स बेसिकली हमको बचाती हैं मैस्ट सेल के रप्चर होने से। इनको मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स कहते हैं। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कैटोटीफेन इनका एग्जाम्पल है और ये पास्ट में काफ़ी यूज़ करते थे, आज के 15-20 साल पहले। अब उतना यूज़ नहीं होता क्योंकि एक स्टडी होती है मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसको बेनिफिट और हार्म रेशियो कहते हैं। अगर किसी चीज़ से हार्म होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसको यूज़ नहीं करते। बट दीज टू आर द क्लासिकल एग्जाम्पल्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड सेकेंड वन इज कैटोटीफेन। तो मैस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ये इतना मजबूत बना देती हैं कि ये रप्चर नहीं होती। ये दोस्तों 5वां पॉइंट हो गया जहां पर हम इंटरवीन होके एस्थमा के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी तक देखिए हम अटैक को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस पर्सन में आपने देखा कि जो एस्थमा का अटैक है वहाँ यहाँ तक आ गया, मैस्ट सेल को रप्चर होने से नहीं रोक पाए, मैस्ट सेल रप्चर हो गई। जब मैस्ट सेल रप्चर हुई तो वो यूजुअली जो केमिकल्स निकालती हैं, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और भी कुछ मीडिएटर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, आप देखेंगे पॉइंट 6 हिस्टामीन निकाल रही है, लेकिन हिस्टामीन का बहुत कम रोल होता है एज फार एज अटैक ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा इज कंसीडर्ड। आप लोग देखेंगे आजकल बहुत कॉमन है, लोग दवाएं लिख देते हैं मोंटेलिक्वेस्ट या सेट्रिजिन या लेवोसेट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन, जो सारी की सारी एंटी H1 हिस्टामिनिक हैं। ऐसा नहीं है कि इनका रोल नहीं है, दीज हैव रोल, लेकिन इनका माइनर रोल होता है। इनसे ज़्यादा रोल होता है ल्यूकोट्राइन्स का। तो जो 7वीं दवा हम यूज़ कर सकते हैं अटैक को प्रिवेंट करने में वो होती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। मोंटेलिक्वेस्ट एंड ज़ेफिरलिक्वेस्ट ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये 6th पॉइंट है, ये 7th पॉइंट है। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, please remember in the pathogenesis of the attack of bronchial asthma the most important chemical mediator is PAF। तो अगर हम कोई ऐसी दवा बना लें जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और एंटी H1 हिस्टामिनिक की तरह एंटी PAF काम करे तो ब्रोंकियल एस्थमा के अटैक को हम लोग बहुत आसानी से रोक सकते हैं। बट अभी तक मेडिकल साइंस PAF एंटागोनिस्ट डेवलप नहीं कर पाई है। आई रेड फार्माकोलॉजी फर्स्ट टाइम इन 1998। तब से ये मैं फार्माकोलॉजी की किताबों में, चाहे गुडमैन गिलमैन हो, चाहे कैट जंग हो, चाहे लिपिनकॉट हो, चाहे हमारी सबकी फेवरेट KD त्रिपाठी हो, उसमें ये PAF एंटागोनिस्ट का जिक्र है, लेकिन अभी तक सक्सेस मेडिकल साइंस को नहीं मिल पाई। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर 2 पे बताया था, जेनेटिक फैक्टर 1 पे बताया था, 3 पे मैंने बताया था कि हम एलर्जेन से एक्सपोज ना होने दें, 4थे नंबर पे बताया था कि मैस्ट सेल्स जो हैं आईजीई बना रही हैं, तो आईजीई जो बन रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर लें हम लोग। एक दवा आ गई है अभी रिसेंटली, सारे पेशेंट में यूज़ नहीं होती, किन पेशेंट्स में यूज़ होती है ये मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 5वां इंटरवेंशन कि मैस्ट सेल को हम रप्चर ही ना होने दें। अब मान लीजिए मैस्ट सेल रप्चर हो जाएं तो हम हिस्टामीन को ना काम करने दें, हालांकि इसका रोल कम होता है, या फिर हम ल्यूकोट्राइन को ना वर्क करने दें, एंटी H1 हिस्टामिनिक और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, या हम PAF को ना वर्क करने दें। दिस इज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अभी इसकी दवा हमारे पास रिसेंटली या अभी तक डेवलप नहीं हुई है।
अब हम लोग आते हैं इस चार्ट के दूसरे साइड में दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं एस्मा की पैथोजेनेसिस के बारे में, तो चार्ट का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, पहले वाला पार्ट को छोड़ दिया। अब मान लीजिए किसी पर्सन में नहीं हुआ, हम मैस्ट सेल के रप्चर को नहीं रोक पाए और मैस्ट सेल ने हिस्टामीन को रिलीज कर दिया, ल्यूकोट्राइन को रिलीज कर दिया, पैफ को रिलीज कर दिया। इसके रिलीज के असर क्या होगा? एक तो पूरे के पूरे ब्रोंकियल म्यूकोजा की परमेबिलिटी वेस्कुलर बढ़ जाएगी। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ब्रोंकियल वॉल में इडमा होगा। जब ब्रोंकियल वॉल में इडमा होगा तो ब्रोंकियल वॉल आप समझ सकते हैं चौड़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो ब्रोंकियल कैविटी थिन हो जाएगी। दूसरा, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया होगा। गॉबलेट सेल एक ऐसी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में जो म्यूकोजा को निकालती हैं, तो खूब सारा म्यूकोजा का प्रोडक्शन होगा। और आप देख सकते हैं यहीं पर मैंने आपको दिखाया है पॉइंट नंबर 9। तो हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया से जो म्यूकस निकलता है, द म्यूकस विच इज सिक्रीटेड बाय गॉबलेट सेल्स, तो उस म्यूकस को सिक्रीट होने से रोकती हैं, जैसे कि ग्लाइकोपाइरोलेट। एस्मा से ज़्यादा सीओपीडी में ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता है और वो म्यूकस हमारा फंस जाता है एयरवे में। तो वहाँ पर हम ऐसी दवाएं देते हैं, वी यूज़ दोज मेडिसिन विच आइदर रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड अदरवाइज, अगर म्यूकस बहुत थिक हो जाता है तो उस म्यूकस को वो लाइज करती हैं और म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करती हैं। इसीलिए उनको हम लोग म्यूकोलिटिक्स और म्यूकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो पहला हो गया वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद आपको बताया कि म्यूकोजा का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ। उसको रोकने के लिए मैंने आपको पॉइंट भी बताए कि हमारे पास दवाएं हैं। और अल्टीमेट इस पूरे पॉइंट का जो कल्मिनेशन है वो साथियों ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है। इसी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से एस्थमा का अटैक होता है। तो 10वें नंबर पे जो दवाएं होती हैं साथियों वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब अटैक एस्थमा का पड़ गया, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 9 तक जितनी भी दवाएं थीं, या पॉइंट नंबर 8 तक मैं कहूँगा, ये दवाएं एस्थमा के अटैक को प्रिवेंट करने में मदद कर रही थी। एस्थमा का अटैक पड़ गया तो हमारे पास एक ही दवा है जिसको हम ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं, और दूसरा का दूसरा एक दवा आता है 9वें नंबर पर जो कि म्यूकोजल के सिक्रीशन को भी रोकती है, लेकिन इसका रोल सीओपीडी में ज़्यादा होता है, एस्थमा में ज़्यादा रोल नहीं होता। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हियर ओनली, दो इट इज़ on the other slide, next slide, कि there are drugs which are known as corticosteroids. Now these corticosteroids can be given orally. These corticosteroids can be given injectable. These corticosteroids can be given by inhalation also. Inhalation with the help of rotahalers or with the help of nebulizer or with the help of inhalers. कैसे भी हम इनको यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं इन दवाओं को हम लोग, तो ये इन्फ्लामेशन के जितने स्टेप आप देख रहे हैं ये सारे स्टेप को प्रिवेंट करती है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक ऐसी दवा है एस्थमा में जो सबसे पावरफुल प्रिवेंटिव इफेक्ट रखती है। हाँ, अगर एस्थमा का अटैक पड़ गया तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, प्राइमरीली ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को दूर करना, यानी ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स। हालांकि स्टडीज में पाया गया है और प्रैक्टिकली भी ये देखा गया है कि अगर किसी पर्सन को एस्थमा का अटैक हो रहा है तो उस पर्सन में एस्थमा के अटैक में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर देते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत फ़ायदा करते हैं, क्योंकि ये ब्रोंकियल परमिएबिलिटी को घटाते हैं, म्यूकस के प्रोडक्शन को घटाते हैं, और ये जितनी भी सेल्स आ रही हैं जो ब्रोंकियल एपिथेलियम में, उनको भी दूर करने में मदद करते हैं। तो अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया वो ये बताया कि एस्थमा की पैथोजेनेसिस क्या है और किस स्टेप पे हम इंटरवीन करके एस्थमा को क्योर कर सकते हैं या उसके अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, या अटैक होने के बाद हम अटैक को रिवर्ट कर सकते हैं। आपने देखा केवल एक ही दवा प्राइमरीली है ब्रोंकोडाइलेटर्स जो अटैक को प्रिवेंट करने में मदद करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है साथियों कि जिस भी पर्सन को एस्थमा है, जिस भी पर्सन का जो एयरवे है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स ज़्यादा कर रहा है, तो उस पर्सन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। सपोज अ पर्सन इज हैविंग ब्रोंकियल एस्थमा,
तो उस पर्सन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्रोंकियल एस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर देती हैं, उनको ट्रिगर्स कहते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये जो मैंने 11 नंबर लिखा है ये इसलिए लिखा है कि अगर हम इन ट्रिगर्स को हटा दें किसी तरीके से तो ऐसे पर्सन में ब्रोंकियल एस्थमा का अटैक नहीं पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दिस इज द रीजन whenever there is a spread of respiratory tract infection in the society, we ask the people having asthma and COPD to please wear mask. Mask को पहने। Secondarily, these are also advised to have influenza vaccine annually. इसका एनुअल एडिशन आता है वैक्सीन का, इसको लगवाएं जिससे कि इन्फ्लुएंजा ना हो। एलर्जेन, जब भी चेंज ऑफ सीजन होता है तब एस्थमा का अटैक ज़्यादा पड़ता है। पॉल्यूशन एंड सिगरेट स्मोकिंग, तो ऐसे लोगों को पॉल्यूशन में जाने की हम लोग मनाही करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग के लिए मना करते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर्स, तो अगर किसी पर्सन का हम हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे अगर उसमें एस्थमा की हिस्ट्री है। एस्पिरिन नहीं यूज़ करेंगे, हेडेक है, क्योंकि ये उनके एस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। Rather, there are few category of the patients of asthma which are aspirin sensitive only. They get attack of asthma only when there is use of aspirin. Cold air is very important factor. जब भी सर्दियां होती हैं नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे बहुत तेज ठंड पड़ती है, लोगों में टहलने की आदत होती है, तो हम उनसे कहते हैं प्लीज़ ऐसे वक्त टहलिए जब बहुत ज़्यादा ठंडक ना हो, क्योंकि आप जितने भी कपड़े पहन लें सांस तो लेंगे ही लेंगे, चाहे मुंह के रास्ते लें चाहे नाक के रास्ते लें। इन आइदर वे दिस कोल्ड एयर विल गो इनटू योर एयरवेज एंड यू विल बी हैविंग ट्रबल विद एस्थमा। एंड एक्सरसाइज, बहुत कम ऐसे फैक्टर्स ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा देखा जाता है। तो वैसे भी एस्थमा के सारे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करें अपने साथ एक ब्रोंकोडाइलेटर का इनहेलर ज़रूर रखें, और जिनमें हिस्ट्री है कि एक्सरसाइज से एस्थमा प्रेसिपिटेट होता है उनमें एक्सरसाइज मना करी जाती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए साथियों हम लोग देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास निकल कर आए। अगर हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखें तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप देखिए दो तरीके के हैं। एक तो आ गए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ अटैक। तो प्रिवेंशन ऑफ अटैक में आपने देखा था सबसे पहला चीज़ क्या था, द फर्स्ट थिंग वॉज HLA म्यूटेशन, तो जीन थेरेपी, दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूचर थेरेपी। इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 3, इन सब का एक ही मतलब है कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो भी एलर्जेन है, हम उससे दूर रहें अगर एलर्जेन को हमने पहचान लिया है। फिर उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4, आपको बताया था अगर एलर्जेन का एक्सपोजर होता है तो उस एलर्जेन के एक्सपोजर के बाद बी सेल्स IgE बनाती हैं। तो हमारे पास एक दवा आ गई है जो IgE को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसको यूं ही सारे पेशेंट्स में यूज़ नहीं किया जाता। अपने पार्ट 2 में मैं आपको उस दवा के बारे में विस्तार से बताऊंगा कब उसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग साथियों बात करें, आपको बताया था IgE ने मास्ट सेल को चारों तरफ से घेर लिया है, मास्ट सेल कभी भी रप्चर हो सकती हैं। तो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, जैसा कि मैंने आपको 2 नाम बताए, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कैटोटीफेन, और ये भी बताया कि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मान लीजिए मास्ट सेल रप्चर हो गई और हिस्टामीन रिलीज हो गया, ल्यूकोट्राइन रिलीज हो गया और पैफ रिलीज हो गया, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है दोस्तों, एंटी H1 हिस्टामिनिक जैसे सेट्रिजिन हो गया, लिवोसेट्रिजिन हो गया, फेक्सोफेनाडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट बहुत कॉमन है आजकल, मॉन्टेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिल्यूकास्ट, और पैफ एंटागोनिस्ट। पैफ सबसे पावरफुल मीडिएटर होता है एस्थमा में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये अभी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, वैसे ही जैसे कि जीन थेरेपी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, अभी तक पैफ एंटागोनिस्ट को मेडिकल साइंस डेवलप नहीं कर पाई है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फिर आगे, म्यूकोजल सिक्रीशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया दिस इज मोर हेल्पफुल इन केस ऑफ COPD, नॉन इन ब्रोंकियल एस्थमा। और मैंने आपको बताया दिस इज फादर ऑफ ऑल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन्फ्लामेशन के जितने भी स्टेप्स हैं उन सब पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम करते ही करते हैं। तो एज फार एज प्रिवेंशन ऑफ अटैक वी हैव जीन थेरेपी विच इज थेरेपी ऑफ फ्यूचर, वी हैव दीज 3
Then we have our latest drug which is called IgE neutralization. We have mast cell stabilizers जिनका रोल अब कम हो गया है. We have anti-H1 histaminic. We have leukotriene antagonist. PAF antagonist is under development. Then we have drugs which can reduce the secretion of mucosa, more helpful in the patients of COPD. Glycopyrrolate is example, and then father of all for the prevention, that is corticosteroid. So powerful that if a patient comes with acute attack of asthma and we use corticosteroid either orally or injectable or by inhalation, it helps in a reversal of attack also. Now suppose a person has developed this attack, the attack has taken place, mast cell has ruptured, lot of leukotriene, lot of PAF, lot of histamine have been released, and the bronchial muscles are constricted now. Bronchial muscles are constricted, so the only treatment during attack of asthma are bronchodilators. And there are three types of bronchodilators. The oldest ones are direct acting, which are also known as methylxanthines, जिनका कॉमन एग्जाम्पल है डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन, अभी और भी डॉक्सोफाइलिन वगैरह आ गए हैं. डेरिफाइलिन एक काफ़ी खतरनाक दवा होती है, इसके काफ़ी इंटरैक्शंस और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. हालांकि बहुत पुरानी दवा है एंड इट्स वेरी मच पॉपुलर. इफ यू गो इन द रूरल एरिया, every doctor, whenever a person of breathlessness comes into the clinic of a doctor, immediately Deriphylline is written, irrespective उनको asthma है भी कि नहीं है. Then second oldest one are beta 2 agonist. The examples are salbutamol, example is terbutaline, and third one the anticholinergics. These two are latest ones, anticholinergics, tiotropium and ipratropium. Ipratropium is giving twice daily and tiotropium is giving once daily. These are given through inhalation only, and these drugs of course cause bronchodilation. So these three drugs, beta 2 agonist, salbutamol, terbutaline, formoterol, etc., these cause bronchodilation. Then anticholinergics, ipratropium and tiotropium, these also cause bronchodilation. Apart from bronchodilation, these also reduce mucus secretion. So these are more helpful in the patients of COPD. And directly acting, 20-25 years back, these used to be drug of choice. Now the first drug of choice is beta 2 agonist. The second is anticholinergic. If attack is not subsided by these two, then only we go for the directly acting ones, because these drugs have some limitations which I would be discussing in our part 2. So this was all about the pathogenesis of the asthma and at what part we can intervene to treat the or cure the attack of asthma. Now we will talk about the second part, which is COPD. COPD, as all of you know, is basically the name given to a group of diseases, which is emphysema and chronic bronchitis. Basic pathogenesis of COPD, chronic obstructive pulmonary disease. The first one is, as all of you can see, genetic susceptibility. Genetic susceptibility में सबसे common example होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. बहुत सारे MD के स्कॉलर इस पर ही अपना थीसिस का टॉपिक लेते हैं. When there is deficient alpha 1 antitrypsin, what does it do? It makes lung less capable to protect from damage. So lung damage is more if there is alpha 1 antitrypsin deficiency because of genetic susceptibility. Now we come to the environmental factors. If we come to the environmental factors, then long-term smoking and infection. Long-term smoking by now is the most common known cause of COPD. This smoking can be active, this smoking can be passive, and you would be surprised to know that passive smoking is equally dangerous as the active smoking. And there is some genetic susceptibility also. So I have seen the patients smoking for 20-30 years and not having the COPD, but his or her spouse who is consuming smoke because of passive smoking is having either COPD and maybe asthma also.
So what these environmental insults to the lungs do? One, free radicals are produced in the lungs. Second thing, inactivation of lung proteases. Free radicals damage the lungs, and when there is lung proteases are inactivated, then the protection mechanism of lungs, lung tissue is being hampered. So in case of COPD, this is basically genetic and environmental factors, and the most common environmental factor is smoking, which unfortunately is very much common among the medicos, among the doctors. और ये यंग एज में दोस्तों नहीं पता चलता, जब हम 25, 30, 35 साल के होते हैं, इट गिव्स ए किक सॉर्ट ऑफ थिंग, से मैनरिज्म की वी आर स्मोकिंग. But when it comes to age of 50 or 55, and every second week or every month a person has to be admitted in the hospital coughing, anything like that, and things cannot be reversed. One more thing which is very interesting in the COPD is if a person smokes for 25 years, suppose person starts smoking at the age of 20 years and kept on smoking till the age of 45 years, and then the person stops smoking, but COPD will not stop. The progression of COPD in these patients will be lifelong. Now, all these things, either environmental factor or you can see the genetic factor, these called inflammation of lung. Now, lung inflammation, because of inflammation there is continuous repeated injury to bronchial tree, and this causes infiltration of inflammatory cell. Lot of inflammatory cells here, basically mainly cells which come here, those cells cause fibrosis and narrowing of the bronchial lumen. Now this is of very much significance. In asthma we didn't see any sort of fibrosis, but in COPD we are seeing the fibrosis. That's why sometimes COPD becomes almost irreversible, because fibrosis means whatever amount of bronchodilator you put into the respiratory tract, those respiratory tract is not going to dilate. So this is a dangerous thing. Now, goblet cell hyperplasia, as I have been discussing since the beginning, it is not in case of asthma, it is in case of COPD that there is goblet cell hyperplasia which causes excess mucus production. One more thing is there is death of ciliated epithelial cell in bronchial mucosa. Now these two, just combine these two, goblet cell hyperplasia is producing lot of mucus, death of ciliated cells. Now because of death of ciliated cells, this mucosa cannot be coughed out. So this mucosa is trapped in the airways, and this trapping is called, may cause infection, because whenever any secretion in body is trapped anywhere, it will lead into the infection. So two things are there. One is high production of mucus, second low drainage of mucus. So these two collectively cause lot of problem in patient of COPD. This is being taken care by anticholinergic drugs, as I told you, ipratropium and tiotropium, and one more drug which is glycopyrrolate, of course anticholinergic, and this being taken care by the mucolytic agents which lies the thick mucus, and mucokinetic agents. In the absence of cilia, these mucokinetic agents help in coughing out the thick sputum and infection. So there is of course antibiotic also. So this entire cascade makes the chronic bronchitis one component of the COPD. The second component of COPD is, all of you know, is emphysema. If we talk of emphysema, then in emphysema we have airway elastic. Airway is elastic basically. Airway elastic. So all of you know inhalation is an active process. सांस लेना, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और लंग्स फूल जाते हैं, और उसके बाद लंग रिक्वायल होते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी. जिनको COPD होती है, एम्फाइसेमा होता है, उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और इलास्टिसिटी कम होने के वजह से
वो रिकॉइल नहीं कर पाते और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में ट्रैप हो जाती है और हाइपर कैपनिया यानी ब्लड में CO2 ज़्यादा हो जाती है। तो CO2 ज़्यादा होने से आप देखेंगे COPD के जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं और जिनमें अगर हम ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस कराएं तो हमको पता चलता है कि उनका CO2 ज़्यादा है, उसके वजह से pH बहुत कम है, उनको हमको NIV वेंटिलेशन या उसके पहले बाईपैप या कभी कभी इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखने का ज़रूरत पड़ता है जिससे CO2 वॉश आउट हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट कि लंग की इलास्टिसिटी कम हो जाती है ब्रोंकियल ट्री की। दूसरा जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वॉल ऑफ ब्रोंकियल कैविटी वो ख़त्म हो जाता है तो एयरवे कोलैप्स हो जाता है। अब आप देखेंगे एज़मा के ऑपोजिट यहाँ पर काफ़ी इरिवर्सिबल फैक्टर हैं, जैसे एयरवे में फाइब्रोसिस हो गई जो एज़मा में नहीं थी, एयरवे कोलैप्स हो गया जो एज़मा में नहीं था। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है परमानेंट डैमेज ऑफ वॉल बिटवीन एल्वियोलाई, और इसके वजह से लंग में बुल्ली बन जाते हैं और उन बुल्ली के बनने से क्या होता है कि एल्वियोलाई छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारा सरफेस एरिया हमको मिलता है जिससे हम एयर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकें। लेकिन इन बुल्ली के बनने से, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होने के वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो प्रभावित होता है। और इन तीनों चीज़ों की वजह से, एयरवे इलास्टिसिटी कम होने के वजह से साथियों, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होने के वजह से और एल्वियोलाई के परमानेंट डैमेज के वजह से जो चीज़ होती है वो क्रॉनिक एम्फाइसीमा होती है। तो COPD इज़ अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक इफ वी कंपेयर इट विद ब्रोंकियल एस्थमा। नाउ you can say the last slide of this part 1 is summary of classification of the drugs which are used in bronchial asthma and COPD. On the left side you can see prevention of attack. सो प्रिवेंशन ऑफ अटैक में मैं वहाँ पर वो चीज़ें अब नहीं रख रहा हूँ जो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे सबसे पहला था जीन थेरेपी, बट वी हैव ड्रग विच न्यूट्रलाइज द IgE, द स्टेप IgE sensitizes the mast cell, in turn mast cell rupture. So we have a drug which neutralize the IgE. In the next part 2 of this topic, I will tell in detail about the mast cell stabilizers which stop mast cell from rupturing. Now, these mast cell stabilizers are ketotifen. These mast cell stabilizers are sodium chromoglycate. Nowadays, these are of less help than anti-H1 histaminics. As I told you, histamine plays little role in the pathogenesis of asthma, but definitely it has leukotriene antagonist. Definitely montelukast and zafirlukast, these have role, but these do not have role during acute attack of asthma. I would be talking in next slide that how can we use the leukotrienes. Then corticosteroid, as I said, this is the master of all drugs which are used in the prevention of attack. These corticosteroids can be used either by inhalation or by orally, or these can be used by injection. Then we have mucolytics and mucokinetics. Then we have the drugs which stop secretion of the mucus, and antibiotics, because whenever mucus is trapped, antibiotics are needed to fight with the infection, and many a times trigger is infection, so we have to use antibiotics. So these 7 drugs are, you can say 7-8 drugs which are used for the prevention of the asthma. Now if we talk about the treatment of the asthma, we have only one thing, that is bronchodilator. Bronchodilator, the oldest one, is directly acting methylxanthines. Then second oldest beta-2 agonist. Third one is anticholinergics. These have several examples. Beta-2 agonist, common ones are salbutamol, terbutaline, and of course formoterol. In anticholinergics we have inhalational hypertropium and tiotropium. Directly acting or methylxanthines, we have dariphyllin, etophylline, we have doxophylline, and so many other drugs. So in my part 2 of this topic, I would be dealing with each drug in detail. First we would be revising a bit about the part 1 and then we will go to the part 2. I hope आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे और इसको काफ़ी
इजी तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। आप कमेंट करेंगे, इसको प्लीज़ बताइएगा कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या किस चीज़ पे आपको नहीं समझ में आया। आई वुड बी इम्प्रूविंग इन माई नेक्स्ट स्लाइड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो to as much as a time, and watching is important once or twice only. इसके बाद आप कैंटीन में खाना खाते वक्त अपने ब्लूटूथ स्पीकर से यूज़ कर सकते हैं, कार ड्राइव करते वक्त सुन सकते हैं लेक्चर को, और आपको